Hello students, welcome back to Science World. I hope you are doing well and getting help from my videos. Students, in our last video we have started 8th class science chapter number 1, that is production and management of crops, and we have talked about the agriculture, that is what is agriculture and what are different types of crops. Okay, in this video we are going to read about methods of crop production. Actually this topic is very big, so the half part of this topic will be discussed in next video. So in this video we are going to read about three steps, that is preparation of soil, manuring and sowing of seeds, and leftover steps of agriculture that we will discuss in our another video. Okay, so let's start with the preparation of soil. Students, we know that in order to raise a crop or cultivate a crop successfully and profitably, a farmer has to perform large number of tasks in a sequence. Means एक जो फार्मर होता है उसको बहुत सारे स्टेप्स में अपना काम करना पड़ता है ना, टू कल्टिवेट अ क्रॉप और फॉर फूड प्रोडक्शन, एंड दिस ऑल द स्टेप्स आर देयर इन अ सीक्वेंस. एक के बाद एक उनको करना पड़ता है, तभी ये जो कल्टिवेशन है या फिर जो फूड प्रोडक्शन है वो सक्सेसफुल होता है. These tasks are called agricultural practices, और यही जो एग्रीकल्चरल टास्क होते हैं, काम होते हैं, उनको एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस कहा जाता है. इट ऑल्सो रिक्वायर्स नॉलेज अबाउट द नेचर ऑफ सॉइल, देन sowing of seeds, how to sow, which type of seeds we have to sow, then methods of plowing, how to plow the land, then different methods of irrigation, pest control, storage, distribution. So many tasks are there. So for this, a farmer or a person who is going to cultivate a crop, he should know about all these steps. Okay, so today in this video we are going to study about these agricultural practices. You can see on the screen there are different agricultural practices: plowing, manuring, sowing seeds, irrigation, spraying pesticides, harvesting and storage. Here you can see the list. Okay, preparation of soil, manuring, sowing seeds, irrigation, crop protection, harvesting and storage and distribution of the product, whatever product is there from the farm. Okay, so these are various agricultural practices and these are carried out at various stages of crop production. ये सारी जो प्रोसेसेस होती है वो एक साथ नहीं होती है, they are carried out at different stages. अलग अलग स्टेज पे अलग अलग जो है इसका प्रोसेसिंग होता है, हर प्रोसेस का एक टाइम होता है. ओके, तो इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं. तो फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल. सो व्हाट इज प्रिपरेशन ऑफ सॉइल? इट इज़ द फर्स्ट स्टेप इन कल्टिवेटिंग अ क्रॉप. क्रॉप अगर आपको कल्टिवेट करना है तो फर्स्ट उसका जो स्टेप होगा दैट इज प्रिपरेशन ऑफ सॉइल. सो लेट्स सी व्हाट इट इज. वी नो दैट द अपर लेयर ऑफ दिस अर्थ वेयर द प्लांट्स ग्रो इज कॉल्ड द सॉइल, है ना. जो अपर लेयर होता है अर्थ का, जिसको हम सॉइल कहते हैं, उसमें सारे प्लांट्स ग्रो होते हैं, वो हम जानते हैं. सॉइल प्रोवाइड्स मिनरल्स, वाटर, एयर, ह्यूमस एंड एंकरेज, यानी कि एक सपोर्ट जो है प्लांट्स को मिलता है. तो ये सारी चीज़ें जो है वो सॉइल से मिलती हैं प्लांट्स को. ओके, सो प्रिपरेशन ऑफ दिस सॉइल इज द फर्स्ट स्टेप इन कल्टिवेटिंग ऑफ अ क्रॉप. तो कल्टिवेशन करना है किसी क्रॉप का तो सबसे पहले हमें ऐसी सॉइल चाहिए होगी जिसमें ये सारी चीज़ें मौजूद हो, जैसे कि वो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी उसकी अच्छी हो, एयर एरिएटेड हो, ह्यूमस हो उसमें, है ना. तो इसके बाद अब जब अपने पास लैंड आ गई है, सॉइल है, तो हम कैसे स्टार्ट करें अपना प्रोडक्शन, है ना, हाउ टू कल्टिवेट क्रॉप्स. तो फर्स्ट जो उसमें प्रोसेस आता है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल जो है, उसमें सबसे पहले हमें करना होता है प्लोइंग एंड लेवलिंग. ओके, तो प्लोइंग और लेवलिंग से हम अपने सॉइल को प्रिपेयर करते हैं फॉर कल्टिवेशन ऑफ अ क्रॉप. So let's see what is plowing. Plowing is the process of loosening and turning the soil for better percolation of water and air. It is also called tilling. Now why is plowing necessary? For better percolation of water and air. If we will sow the seeds or we will grow crops on the same soil without plowing, then what will happen? The soil becomes hard. When we irrigate the land or the farm, it becomes hard. So when we take the next crop production, that time we have to lose that soil, because again we have to sow the seeds, and if these seeds will not get air and if they will not go inside the soil, they will not grow properly, and for that we have to lose the soil. Okay, and for turning the soil means the soil that is over, the soil that is the upper layer of the soil, it goes down and the soil which is below it comes up. So it is the turning of soil.
एंड इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर बेटर पर्कुलेशन ऑफ वाटर एंड एयर. वाटर और एयर जो है वो सॉइल के अंदर इजीली पास हो, इसलिए हमको उसको प्लो करना पड़ता है. इट इज़ ऑल्सो नोन एज टिलिंग. Plowing is done with the help of plow, which is driven by a tractor or by animals like oxen. You can see here in the picture. So it is a plow, जिसको हम हल कहते हैं हिंदी में. तो plowing is done by tractors or by animals. In small fields it is done by animals. अगर छोटा सा अगर खेत है तो animals use करते हैं, जैसे कि oxen है. But when there is cultivation in the large farm, then this type of tractors are used for plowing the field. Okay. Now, why this plowing is important? What are the advantages or benefits of plowing? Let's see. Loosening of soil. Loose soil allows roots to grow deep into the soil and it supports the plants, and that is why loosening of soil is required. It allows roots to grow deep into the soil, and also it supports the plants. If the roots grow inside the soil deep, then they will support the plant very firmly. Then we will read about the agricultural implements used for plowing. कौन कौन से implements हैं जो हम plowing के लिए use करते हैं. So first one is the plow. A plow is an agricultural implement and which is used or which is usually driven by tractor or by a pair of bulls or other animals. Other animals means like if in hill areas mules and ponies are there, in the deserts camels are used for that. So bulls and other animals, they are used for plowing the field, and a plow is used. Here you can see the plow, it may be of made of iron or it may be made up of wood. So wooden or iron plows are used for plowing. At its one end is a strong triangular iron strip. Here you can see, here it is known as plowshare. Here you can see this one. This one is plowshare, which is connected to a long log of wood. This is long log of wood, this one, and it is known as plow shaft. Okay, there is a handle at one end of the shaft. इस shaft के एक तरफ होता है एक handle and the other end is attached to a beam. ये जो है wooden का एक beam होता है और इससे ये जो है plow shaft जुड़ा होता है. Okay, and why this beam is there? It is on the place where the animal snakes are there. Means this beam is placed on the animal's neck. So here both the sides, bulls or other animals, they can be used. Nowadays disc plows are also used for plowing. Disc plow में दिखाती हूँ आपको. This one is the disc plow. You can see here. तो ये है इसका plow shaft और अंदर आपको यहाँ भी नहीं दिखेगा, इस तरफ होता है इसका plowshare जो कि कनेक्ट करता है ट्रैक्टर से इसको. सो दिस इज डिस्क प्लो. तो इससे क्या होता है कि एक साथ में बहुत सारी जो लैंड होती है, बहुत सारे एरिया उसकी प्लोइंग हो जाती है. बिकॉज ये मैकेनिकल है तो टाइम भी सेव होता है और लेबर भी सेव होता है. ओके, देन नेक्स्ट इज हो. हो इज अ सिंपल इम्प्लीमेंट एंड इट इज ऑल्सो पुल्ड बाय द एनिमल्स. इट इज ऑल्सो यूज फॉर वीडिंग एंड लूजनिंग द सॉइल. वीडिंग मैंने जैसे अभी आपको बताया था, जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं उसको रिमूव करने के लिए, एंड फॉर लूजनिंग द सॉइल. It consists of a long rod of wooden or iron fixed with a strong broad bent plate. ये bent plate होती है जो कि बहुत strong होती है, metal से बनी होती है या फिर wood की भी हो सकती है ना. तो ये जो आयरन की बनी हुई bent plate होती है वो जो है इस सॉइल को लूज करने में हेल्प करती है और ये एक ब्लेड की तरह काम करती है. मिट्टी को अलग अलग करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है. तो ये वीडिंग के लिए और लूजनिंग ऑफ सॉइल के लिए इसको यूज़ करते हैं. तो यहाँ आप देख सकते हैं कि हैंडल है, ये हैंडल का ग्रिप है, ये रॉड है और ये एक बीम है जहाँ एनिमल्स को हम यूज़ कर सकते हैं, उनके नेक पे ये बीम रख सकते हैं. ओके, देन नेक्स्ट इज कल्टिवेटर. कल्टिवेटर जो है वो थोड़ा ट्रेडिशनल प्लो से अलग होता है, बिकॉज नाउ डेज दिस ट्रेडिशनल प्लोज एंड होज हैव बीन रिप्लेस्ड बाय द कल्टिवेटर्स. क्योंकि ये एक साथ बहुत सारा काम कर सकता है कल्टिवेटर, है ना, एंड इट इज़ ड्राइवन बाय अ ट्रैक्टर. तो ये जो कि ट्रैक्टर से इसको लगा के ट्रैक्टर को अटैच करके इससे हम काम करते हैं. तो इससे क्या होता है कि मशीन्स यूज़ करने की, ये मशीन यूज़ करने से हम लेबर यानी कि जो हमारा मेहनत है उसको हम कम करते हैं और साथ ही साथ हम अपना टाइम भी सेव करते हैं. क्या सेव करते हैं? टाइम. ओके, तो लेबर और टाइम दोनों ही हम इससे सेव करते हैं बिकॉज इट इज़ ड्राइवन बाय अ ट्रैक्टर.
हियर यू कैन सी, ये एक और बड़ा कल्टिवेटर आप देख सकते हैं यहाँ पर, दिस वन ऑल्सो. सो देयर आर डिफरेंट वैरायटीज, अलग अलग वैरायटीज होती हैं इसकी. द नेक्स्ट इज न्यूट्रिएंट रिच सॉइल कम्स टू द top. Plowing brings the nutrient rich soil to the top so that the plants can use these nutrients. Then aeration of soil. Plowing aerates the soil which allows the roots to breathe easily. Because of this aeration, when air get mixes with the soil, it allows plants or the roots of the plants to breathe easily. Then next, the manures and fertilizers mix better in the plowed soil. When the soil is plowed, तो क्या होता है कि जो मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स हम यूज़ करते हैं प्लांट्स के लिए वो अच्छी तरह से उसमें मिक्स हो जाते हैं. देन अर्थवर्म्स एंड माइक्रोब्स ग्रो वेल. सी स्टूडेंट्स, व्हेन देयर इज लूजन सॉइल, है ना, लूज सॉइल जो होती है, इट हेल्प्स इन ग्रोथ ऑफ द अर्थवर्म्स एंड माइक्रोब्स दैट आर प्रेजेंट इन द सॉइल एंड दिस इंक्रीजेज द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल. वी नो दैट दिस अर्थवर्म्स एंड माइक्रोब्स दैट आर लिविंग इन द सॉइल, दे नीड एयर, है ना, they need air to breathe, and plowing makes the soil airy, and that's why these microbes can grow well, and also the earthworms. Uproots the weed. Plowing also uproots the weed. Weed, what is weed? Weed, it is the unwanted plant. These are the unwanted plants that grow in the, or we can say with the crops. Okay, so whatever crops are there in the farm, suppose around these weeds are grown, weed plants are grown, then because of this plowing, these all the weeds are removed from the field. And the last is sunlight reach deeper into the soil. Loose soil helps sunlight to reach the deeper layer of the soil and kills the harmful microbes. Okay, so these are the advantages of plowing. The next is leveling. It is the crushing the lumps of the soil and gently pressing the soil with a leveler. तो लम्प्स जो होते हैं, बड़े बड़े पीसेस होते हैं, उनको तोड़ना और जेंटली सारी जो सॉइल है उसको एक जैसा करना, लेवल में करना. इट इज़ नोन एज लेवलिंग. द प्लोड सॉइल इज क्वाइट लूज एंड इट कैन बी कैरिड अवे बाय स्ट्रॉन्ग विंड्स और वॉश्ड अवे बाय रेन वाटर. सो द प्लोड सॉइल इज लेवल्ड बाय प्रेसिंग इट विद द लेवलर. ओके, तो जो लूज सॉइल होती है हमें पता है कि वो हवा से या फिर हवा से उड़ जाती है या फिर पानी के साथ बह जाती है ना, तो इसलिए हमें उस सॉइल को एक जैसा करना होता है. अल्सो द प्लोड सॉइल में हैव बिग लम्प्स. मैंने अभी आपको बताया कि जो लम्प्स होते हैं, बड़े बड़े क्रम्स जिसको हम बोलते हैं, तो ये क्रम्स जो होते हैं उनको तोड़ने के लिए, उनको प्रेस करने के लिए हम लेवलर का यूज़ करते हैं. ये लेवलर जो होता है वो वुडन का भी हो सकता है या फिर आयरन का भी हो सकता है. हियर यू कैन सी, ये एक वुडन का लेवलर है, ये भी एक वुडन का लेवलर है. दो बोथ आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स बट देयर वर्क इज सेम. हियर यू कैन सी, ये जब लार्ज जो फील्ड होता है उसको लेवल करने के लिए यूज़ किया जाता है. देन व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ लेवलिंग. लेवलिंग का बेनिफिट क्या है ना, क्या फ़ायदा है. सो फर्स्ट इज इट प्रिवेंट्स द सॉइल इरोजन. मैंने अभी आपको बताया कि जो ओपन सॉइल होती है तो वो हवा से या पानी से बह जाती है ना, तो इसीलिए उसको, इस सॉइल इरोजन को रोकने के लिए जो है हम सॉइल को एक जैसा करते हैं, लेवलिंग करते हैं. इट एंश्योर्स द यूनिफॉर्म इरिगेशन. अब यूनिफॉर्म इरिगेशन का मतलब होता है कि जो वाटर हम देते हैं प्लांट्स को जब क्रॉप्स ग्रो होते हैं, तो व्हेन वी इरिगेट द क्रॉप्स दैट टाइम दिस वाटर मूव्स इक्वली थ्रू आउट द फील्ड. पूरे फील्ड में वो एक जैसा फैल जाए, इसलिए हम लेवलिंग करते हैं. अगर लेवलिंग नहीं होगा, कहीं पे गड्ढे होंगे तो कहीं पे ऊंचाई होगी, तो क्या होगा कि जो सारा पानी है वो गड्ढों में इकट्ठा हो जाएगा और पानी जो है सारे फील्ड में एक जैसा नहीं पहुँचेगा. तो यूनिफॉर्म इरिगेशन के लिए हम इसको यूज़ करते हैं. देन नेक्स्ट इज यूनिफॉर्म मिक्सिंग ऑफ मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स. सेम जैसे वाटर का मैंने आपको बताया, इन द सेम वे मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स दे गेट मिक्सड यूनिफॉर्मली इन द फील्ड. एंड द लास्ट वन इज लेसन द लॉस ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम द सॉइल. अब जो लॉस ऑफ मॉइस्चर होता है, इसका मतलब कि जो इवापोरेशन होता है, वाटर का जो इवापोरेशन होता है, उसको कम करने के लिए भी लेवलिंग जो है वो बहुत ज़रूरी होती है. एंड दैट इज़ वाई वी कैन प्रिवेंट द लॉस ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम द soil. Okay, so these are all the advantages of leveling. After preparation of the soil, the next step or next task in the cultivating of a crop is manuring, and its meaning is adding manure and fertilizers to the soil. Soil के अंदर manures और fertilizers को add करना. So this is the second step.
that is manuring. Students, we know that the crop plants need a number of minerals or we can say nutrients for their growth, and these they get from the soil and through their roots. Now what happens when we take repeated crops, or we grow repeated crops in the same field, it removes a lot of minerals and organic matter from the soil, and due to this the soil becomes infertile. आफ्टर सम टाइम द क्रॉप यील्ड ऑल्सो डिक्रीजेस, और इसी की वजह से क्या होता है कि जो क्रॉप का प्रोडक्शन होता है वो भी कम होता है ना. सो दिस डेफिशिएंसी ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट्स एंड ऑर्गेनिक मैटर इन द सॉइल इज मेड अप बाय एडिंग सम मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स टू द सॉइल. तो इस तरह से हम जो कुछ मैन्योर्स होते हैं या फिर जो फर्टिलाइजर्स होते हैं उनको ऐड करके सॉइल के अंदर हम उसकी जो फर्टिलिटी होती है उसको बढ़ा सकते हैं. सो बिफोर सोइंग सीड्स, मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स आर एडेड टू द सॉइल टू इंक्रीज इट्स फर्टिलिटी. ओके, so what is manure? Manure is a natural fertilizer. ये natural fertilizer होता है and it is obtained from the natural and organic substances. और वो substances क्या होती है? Animal waste है, जैसे cow dung है, then human waste होता है, plants के जो बचे कुछ parts होते हैं, here you can see है ना, dry जो plants होते हैं वो plant residues जिसको हम कहते हैं, then और भी जो सारा वेस्ट मटेरियल होता है वो सारे वेस्ट जो मटेरियल होते हैं नेचुरल और ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज उसको डिकम्पोज करके by decomposition of these substances this manure is made. और इससे क्या होता है कि जो प्लांट्स के लिए ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स होते हैं दे आर एडेड टू द सॉइल, है ना, एंड द सॉइल बिकम्स फर्टाइल. तो इस तरह से ये इन सारी चीज़ों से बनता है इस तरह का मैन्योर. ओके, though manures are not very rich in the nutrients like nitrogen, phosphorus, potassium, sulfur, but they are very rich in organic chemical nutrients like humus. And when this humus is added to the soil, it improves the soil's texture. Soil का जो texture होता है वो improve होता है for better retention of water and aeration. तो इस तरह का मैन्योर जब हम सॉइल के अंदर ऐड करते हैं तो उससे सॉइल का जो टेक्सचर होता है वो अच्छा हो जाता है, जिसकी वजह से वाटर रिटेंशन यानी कि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो होती है सॉइल की इट इंक्रीजेस. सो इट बिकम्स पोरस, वो पोरस बन जाता है और अच्छे से वाटर और एयर को सॉइल अपने अंदर वो होल्ड कर सकती है सॉइल. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द मैन्योर. नाउ व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैन्योर्स? लेट्स सी. There are different types of manures: compost, vermicompost, farmyard manure and green manure. Okay, so we will read about them one by one. The first one is compost. Now this compost, it is obtained when farm waste like livestock excreta like cow dung, vegetable waste, domestic waste, sewage waste, straws, weeds, etc. are decomposed in the pits, and this process is known as composting. Compost is rich in organic matter and nutrients. You can see here all the waste material, it is buried in the pits. सॉइल के अंदर गड्ढे बनाए जाते हैं बड़े बड़े या फिर इस तरह के टैंक्स बनाए जाते हैं जिसके अंदर इस सारे वेस्ट को डाल दिया जाता है. एंड आफ्टर सम टाइम ये जो वेस्ट होता है सारा जो मैंने अभी आपको बताया, जैसे कि लाइफ स्टॉक एक्सट्रा मीन्स जो भी काऊ डंग है या फिर जो भी डोमेस्टिक एनिमल्स है उनका जो वेस्ट मटेरियल होता है वो है. देन डोमेस्टिक वेस्ट लाइक वेजिटेबल पील्स है, देन सीवेज वेस्ट है, स्ट्रॉ, वीड्स, ये सारे इसमें डाल दिए जाते हैं और इस कंपोस्ट पीट के अंदर कंपोस्ट बन जाता है बाय डिकम्पोजिशन ऑफ दिस ऑल द प्लांट्स. ओके, प्लांट पार्ट्स एंड अदर ऑर्गेनिक मैटर, और इस तरह से कंपोस्ट बनता है. देन नेक्स्ट इज वर्मी कंपोस्ट. कंपोस्ट इज ऑल्सो प्रिपेयर बाय यूजिंग अर्थवर्म्स. यू कैन सी हियर दीज आर ऑल द अर्थवर्म्स, और इनको यूज करके वर्मी कंपोस्ट बनता है टू क्विकन द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल वेस्ट. दिस मेथड इज नोन एज वर्मी कंपोस्टिंग. अब वर्मी कंपोस्ट में अर्थवर्म्स क्यों यूज करते हैं? बिकॉज जो अर्थवर्म्स होते हैं दे ईट ऑल द न्यूट्रिएंट्स. ओके, मीन्स दे गेट देयर फूड फ्रॉम द सॉइल, और वो अपनी जो उनका जो वेस्ट होता है, जो वेस्ट उनकी बॉडी से निकलता है वो फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स होता है ना, और ये जो उनका जो वेस्ट होता है वो सॉइल में अच्छे से मिक्स हो जाता है. एंड दिस कंपोस्ट जो इससे बनता है उनके वेस्ट से, ये प्लांट्स के लिए बहुत अच्छा होता है. ओके, सो हियर यू कैन सी दिस इज द वर्मी कंपोस्ट मेड फ्रॉम अर्थवर्म्स. Here you can see in market this type of vermicompost of different companies, it is also available. Here you can see these are the different steps. Vermicompost pits in the farmers field. इस तरह से vermicompost के pits बनाए जाते हैं, tanks बनाए जाते हैं. Then healthy worm जो होते हैं वो वहाँ पर छोड़ दिए जाते हैं tanks के अंदर with all these waste material, and then इस तरह का जो vermicompost है आपको मिलता है. Then next is farmyard मैन्योर. इसमें क्या होता है कि इट इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम कैटल डंग. कैटल डंग जो होता है काउ डंग वगैरह. देन रेसिड्यूज लाइक स्ट्रॉ, लीव्स, ब्रांचेस ऑफ क्रॉप प्लांट्स, ये सारी जो चीज़ें होती हैं आप देख सकते हैं जो ड्राई प्लांट्स के पार्ट्स होते हैं ना, ब्रांचेस होते हैं, लीव्स होते हैं, रूट्स होते हैं, स्टेम के पार्ट्स होते हैं, स्ट्रॉज होते हैं, तो ये सारा जो है इकट्ठा करके पिट्स में डाल दिया जाता है
और जिससे फिर ये फार्म यार्ड मैन्योर बनता है एंड इट इज़ जनरली प्रिपेयर्ड इन द फार्म्स. ओके, हियर यू कैन सी कंपोस्ट किस तरह से बनता है. सो एक्सक्रीटा है, ह्यूमन और एनिमल एक्सक्रीटा, देन सीवेज वेस्ट, डोमेस्टिक वेस्ट, वेजिटेबल वेस्ट, स्ट्रॉ, ये सब पिट्स में रखे जाते हैं गड्ढों में और फिर ऊपर से मिट्टी डाल दी जाती है एंड देन इस तरह से कंपोस्ट बनता है. तो कंपोस्ट मैन्योर और वर्मी कंपोस्ट मैन्योर दो तरह के हमें मिलते हैं वेस्ट से. देन नेक्स्ट इज ग्रीन मैन्योर. नाउ व्हाट इज ग्रीन मैन्योर? ग्रीन मैन्योर जो कि हमें ग्रीन प्लांट से मिलता है एंड हाउ इट इज प्रिपेयर्ड. Before sowing the crop seeds, some leguminous plants like sun hemp and guar are grown and then mulched by plowing them into the soil. अब ये जो है you can see here, ये गुआर फली जिसको हम बोलते हैं क्लस्टर बीन्स है. देन दिस इज क्रोटालेरिया जुनेका, देन सिस्बानिया रोस्ट्राटा, काउ पीज, सिबानिया एक्युलेटा, ये कुछ प्लांट्स हैं ग्रीन प्लांट जिनको हम ग्रीन मैन्योर के लिए यूज़ करते हैं. अब इसमें हम करते क्या है, बिफोर सोइंग द क्रॉप सीड्स दिस प्लांट्स आर लेगुमिनस प्लांट्स. नाउ लेगुमिनस प्लांट्स आपको पता होगा कि ये जो लेगुमिनस प्लांट्स होते हैं उनके जो रूट्स होते हैं उनमें रूट नोड्यूल्स होती हैं, गांठें होती है छोटी छोटी, और इनके अंदर नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं. तो ये जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज होते हैं वो नाइट्रोजन को यूज़ करके कुछ न्यूट्रिएंट्स जो है वो प्रिपेयर करते हैं, है ना. तो क्योंकि प्लांट जो है वो नाइट्रोजन को सीधे सीधे यूज़ नहीं कर सकते एटमॉस्फेयर में से, इसीलिए ये नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया उनको हेल्प करते हैं नाइट्रोजन का एज अ नाइट्रोजन सोर्स, है ना. तो ये जो लेगुमिनस प्लांट्स होते हैं इनको ग्रो किया जाता है और फिर उनको ग्रो करने के बाद उनको सॉइल के अंदर ही वहीं पे उनको मल्च किया जाता है. मल्च का मतलब होता है उसको प्लो के साथ वहीं पे उनको ऐड कर दिया जाता है मिट्टी के अंदर, है ना. तो दिस ग्रीन प्लांट्स टर्न्स इनटू ग्रीन मैन्योर विच हेल्प्स इन द एनरिचिंग ऑफ सॉइल इन नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस. तो इस तरह से नाइट्रोजन और फॉस्फोरस जो है वो सॉइल के अंदर ऐड हो जाता है. तो ये जो है मल्चिंग जिसको बोलते हैं, इन प्लांट्स को सॉइल के अंदर वहीं पे ऐड कर देते हैं. देन व्हाट आर केमिकल फर्टिलाइजर्स. फर्टिलाइजर्स हम देखते हैं. नाउ फर्टिलाइजर्स आर द केमिकल्स दैट कंटेन न्यूट्रिएंट्स फॉर प्लांट्स ग्रोथ, है ना. व्हाई दिस केमिकल फर्टिलाइजर्स आर यूज्ड. नाउ सी अ मैन्योर इज नॉट न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक. मैंने पहले बताया कि जो मैन्योर होते हैं दे आर नॉट न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक. एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट के लिए हम मैन्योर नहीं डाल सकते. सपोज किसी सॉइल के अंदर किसी प्लांट्स किसी क्रॉप के लिए सपोज कोई नाइट्रोजन चाहिए या फॉस्फोरस चाहिए, तो ऐसा पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट हम मैन्योर में से नहीं दे सकते. एंड दैट इज व्हाई दिस मैन्योर इज नॉट मच हेल्पफुल व्हेन अ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट इज रिक्वायर्ड इन द सॉइल फॉर अ पर्टिकुलर प्लांट और क्रॉप. So in such situations chemical fertilizers are used which are nutrient specific. ये होते हैं nutrient specific. Now manures are not able to supply required quantities of essential plant nutrients like nitrogen, phosphorus and potassium, and so they are supplemented with the chemical fertilizers. Now you can see on the screen three types of nutrients are there: nitrogen, then phosphorus and potassium. Okay, so chemical fertilizers are the salts or organic compounds containing some नेसेसरी प्लांट न्यूट्रिएंट्स लाइक NPK. इनको कहा जाता है NPK, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम. ओके, सो इसका जो एग्जांपल्स हैं कुछ केमिकल फर्टिलाइजर्स के वो है यूरिया, अमोनियम सल्फेट, पोटैश और NPK. दीज आर सम केमिकल फर्टिलाइजर्स. केमिकल फर्टिलाइजर्स आर हाईली सोल्यूबल इन वाटर. दे आर हाईली सोल्यूबल इन वाटर एंड दैट्स वाई दे आर इजिली एब्जॉर्ब बाय द प्लांट्स. प्लांट्स इनको इजिली एब्जॉर्ब कर सकते हैं क्योंकि वो वाटर सोल्यूबल है. एंड दे आर प्रोड्यूस्ड इन फैक्ट्रीज एंड पैक्ड इन एयर टाइट बैग्स एज दे एब्जॉर्ब मॉइस्चर क्विकली. उनको फैक्ट्रीज में बना के इस तरह के एयर टाइट पैक्स में बैग्स में पैक किया जाता है क्योंकि वो मॉइस्चर को इजीली एब्जॉर्ब कर लेते हैं. केमिकल फर्टिलाइजर्स आर यूज बिफोर सोइंग भी यूज़ कर सकते हैं, ड्यूरिंग इरीगेशन और स्प्रेड ऑन द स्टैंडिंग क्रॉप्स. जो स्टैंडिंग क्रॉप्स होते हैं उनके ऊपर भी इसको स्प्रे कर सकते हैं या फिर सॉइल के अंदर इसका पानी बना के डाल सकते हैं या फिर ऐसे ही प्लांट्स में इसको दे सकते हैं. यू कैन सी हियर पानी में डाल के स्प्रे कर सकते हैं और ऐसे ही इसको सॉइल के ऊपर डाल सकते हैं प्लांट्स के पास. बाय यूजिंग केमिकल फर्टिलाइजर्स द फार्मर्स गेट बेटर यील्ड ऑफ क्रॉप्स लाइक व्हीट, राइस, मेज. ये जो क्रॉप्स होते हैं उनका अच्छे से प्रोडक्शन हो जाता है. बट एज दीज आर द केमिकल फर्टिलाइजर्स, केमिकल्स हैं इसलिए उनके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं. सो व्हाट आर दिस डिसएडवांटेजेस. नाउ सी द chemical fertilizers, they damage the soil. Now how they damage the soil? Because of excessive use of fertilizers. excessive use जब हम करते हैं fertilizers का, it damages the soil and it makes the soil too acidic. या तो acidic बनती है soil या फिर alkaline, है. so acidic और basic जो है वो soil इससे बन जाती है excessive use of fertilizer से. then next is
water pollution. Fertilizers have also become a source of water pollution. How? Excess fertilizers get washed away by rainwater from the crop fields into the water bodies, harming the aquatic plants and the animals. तो इस तरह से वाटर पोल्यूशन होता है. एक्सेस फर्टिलाइजर्स also harms the microbes. जो माइक्रोब्स होते हैं सॉइल के अंदर उनको किल करने का ये काम करते हैं. देन दे आर हार्मफुल फॉर द हेल्थ. ऐसे जो केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं हम प्लांट्स के ऊपर, है ना, तो वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है जो हम खाते हैं उसके बाद. सो बिकॉज ऑफ दिस fertilizers, these vegetables, fruits and whatever crops are there, they become harmful for our health also. Now what are the advantages of manure over fertilizers? तो fertilizers जब हम यूज़ करते हैं और manure जब हम यूज़ करते हैं तो manure कैसे हमारे लिए beneficial है? See, manure enhances water holding capacity of the soil. मैन्योर जो होते हैं हमने पहले पढ़ा कि जो मैन्योर यूज़ करने से जो सॉइल का टेक्सचर जो है वो चेंज हो जाता है ना. दैट मीन्स इट कैन होल्ड मोर वाटर एंड एयर, सो इट एनहांसेस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल. द नेक्स्ट इज इट मेक्स सॉइल पोरस. बाय एडिंग मैन्योर सॉइल बिकम पोरस एंड द एक्सचेंज ऑफ गैसेस इज वेरी ईजी, सो इट एरिएट्स द सॉइल. देन इट इम्प्रूव्स द टेक्सचर ऑफ द सॉइल, जैसा कि मैंने आपको भी बताया. इट ऑल्सो इंक्रीजेस द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स इन द सॉइल के अंदर माइक्रोब्स को ग्रो होना बहुत इजी हो जाता है अगर उस सॉइल में बहुत अच्छे से एयर हो. तो मैन्योर जो है एक तरह से माइक्रोब्स के लिए फूड भी वहाँ पर प्रोवाइड करती है और सॉइल का जो टेक्सचर होता है वो अच्छा हो जाता है, इसलिए उनको एयर भी मिलती है. तो इट इंक्रीज द माइक्रोब्स इन द सॉइल. It is environment friendly. When we use manure in the soil, there is no harm for us because it is environment friendly, or we can say eco friendly, and there is no chance of any type of water pollution as it is there in the uses of chemical fertilizers. Okay. Now after the second task, that is manuring, the next step is sowing the seeds. Now what is sowing? It is the process of putting seeds into the soil, and this is very important as we have to grow the crops. So without seeds we cannot grow the crops. So third step is sowing the seeds. Now once the soil in the field has been prepared by plowing, leveling, manuring, then seeds can be sown into the soil. But before sowing seeds we have to select good quality seeds, है ना, because good quality seeds जो होते हैं they are clean, they are healthy and they are free from infection and diseases. ओके तो ये सब हमें पहले ही पता करना होता है और इसको प्रिपेयर करके रखना होता है सीड्स को. बट उसके बाद भी हमें कुछ प्रिकॉशंस लेने हैं जो कि सोइंग सीड के साथ जुड़े हुए हैं. तो जब हम सीड्स को सो करते हैं, जिसको हम बुआई कहते हैं हिंदी में, है ना, बुआई जब करते हैं खेतों में, तो उस टाइम हमें क्या क्या प्रिकॉशंस लेने होते हैं वो हम पढ़ेंगे. ओके, सो द फर्स्ट वन इज सीड्स मस्ट बी ऑफ गुड क्वालिटी. यहाँ आप देख सकते हो एक ये सीड्स का टाइप है और एक ये सीड्स का टाइप है. दोनों जो सीड्स में आपको कुछ डिफरेंस दिख रहा होगा, है ना. तो अगर आप यहाँ देखते हो लेफ्ट वाले मैग्नीफाइंग ग्लास में अगर आप देखते हो तो हियर द सीड्स आर हेल्दी, है ना, उनका कलर भी अच्छा है, उनका जो साइज़ है वो भी सही है और बिल्कुल क्लीन है और हेल्दी है. और दूसरा जो मैग्नीफाइंग ग्लास है इसमें आप देख सकते हो, यू कैन सी हियर द सीड्स आर नॉट दैट मच हेल्दी, है ना, उनका कलर भी अलग है और उनका जो साइज़ है वो भी अलग है. तो दीज आर नॉट हेल्दी seeds, they are not of good quality, these are maybe having some kind of disease. Okay, so seeds that we use for sowing, they should be of good quality, healthy, disease resistant and pest free. Disease resistant means वो किसी भी disease से ग्रस्त नहीं हो, है ना, और ऐसी नहीं हो कि जैसे ही हम इसको सॉइल में डालेंगे और ये खराब हो जाएगी, है ना. तो इस तरह से हमें गुड क्वालिटी सीड्स यूज़ करना चाहिए. यहाँ आप देख सकते हो जो सीड्स हैं उनमें फंगस लगा है बुरी तरह से, है ना. तो दिस टाइप ऑफ सीड्स आर नॉट गुड फॉर क्रॉप. Then these seeds must be sterilized by fungicides and antibiotics. तो कुछ एंटीबायोटिक्स और फंगिसाइड्स आते हैं जिनसे हम सीड्स को ट्रीट कर सकते हैं और उनको हम फंगस और बैक्टीरियाज को रिमूव कर सकते हैं बिफोर सोइंग द सीड्स. ओके, तो स्टरलाइज मतलब उनको फंगस और बैक्टीरिया से रिमूव करना उनसे. Then next is there must be proper spacing between the seeds to avoid competition for space, oxygen, water, nutrients and light during the germination of seed. Now when we sow seeds in the soil, we must see that there is proper space between the seeds, क्योंकि यही जो seeds है वो grow होंगे और plants बनेंगे, है ना. तो if there will be no space for them, अगर उनके लिए proper space नहीं होगा, enough space नहीं होगा, then they will not get the oxygen, water, nutrients and light and they will compete with each other for all these things, है ना. इसलिए हमें क्या करना चाहिए, क्या ध्यान रखना चाहिए कि they should have proper space in between them. Okay, then next is सीड शुड बी सोन एट अप्रोप्रिएट डेप्थ. उनकी जो डेप्थ होती है सीड को वो करने की, है ना, सो करने की, तो
यहाँ अगर हम ऊपर ही ऊपर डाल देते हैं सीड्स तो वो नीचे नहीं जाएंगी और उनके जो रूट्स हैं वो अच्छे से ग्रो नहीं हो पाएंगे, है ना। दिस सीड्स जर्मिनेट नहीं हो पाएंगे अगर वो सॉइल के अंदर नहीं जाएंगे, है ना। तो एक प्रॉपर डेप्थ होता है हर सीड का, उसी डेप्थ पे हमें उनको सो करना होता है। तो सॉइल सरफेस पे रहेंगे तो दे विल नॉट जर्मिनेट प्रॉपर्ली। ऑल्सो दे कैन बी इजीली ईटन बाय द बर्ड्स और अदर एनिमल्स। जैसे ही हम सीड्स को सो करते हैं फार्म में बर्ड्स आना शुरू हो जाते हैं, तो अगर उनको ऊपर ही वो दिख जाती है सीड्स तो वो उसको खा जाते हैं। तो हम बर्ड्स से बचाने के लिए भी सीड्स को प्रॉपर डेप्थ पे और प्रॉपर स्पेसिंग के साथ सो करना बहुत ज़रूरी होता है। देन सीड शुड नॉट बी सोन इन ड्राई सॉइल। जब ड्राई सॉइल होती है तो हमें सीड्स उसमें सो नहीं करना चाहिए। सीड्स को सो करने से पहले जो वाटर है उसको डालना चाहिए सॉइल के अंदर, यानी कि उसको इरिगेट करना चाहिए, बिकॉज ड्राई सॉइल हैज़ नो मॉइस्चर एंड इफ देर इज़ नो मॉइस्चर सीड्स विल नॉट जर्मिनेट। तो फॉर जर्मिनेशन ऑफ सीड्स मॉइस्चर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इन ड्राई सॉइल seeds will not get that moisture. And opposite to it, if the soil is very wet, seeds will not grow, they will die, है ना. So the soil surface becomes dry and hard due to this wet soil. जब wet soil जब dry होती है तो वो हार्ड हो जाती है, हमें पता है, हमने आपने बहुत बार करके भी देखा होगा कि जब हम सॉइल के अंदर पानी डालते हैं उसको मड बन जाता है और मड जो है वो बहुत हार्ड होता है ना. तो इस तरह से वेट सॉइल में अगर हम सीड्स डालेंगे तो जब ये सॉइल बहुत ज़्यादा गीली है तो ये जब सूखेगी तो वो हार्ड बन जाएगी और उसके अंदर जो सीड्स है दे विल नॉट जर्मिनेट एंड दिस विल नॉट अनेबल टू कम आउट ऑफ द सॉइल. ऑल्सो सीड्स विल नॉट गेट एयर इन वेट सॉइल. तो जो वेट सॉइल होती है उसके अंदर एयर नहीं होती है और इसीलिए जो सीड्स है वो जर्मिनेट नहीं हो पाते हैं. देयर इज़ वन एक्टिविटी हाउ टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन हेल्दी एंड अनहेल्दी सीड्स. ये एक्टिविटी आप घर पे भी कर सकते हो. व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू टेक अ बीकर और यू कैन टेक अ ग्लास विथ सम वाटर एंड पुट सम ग्राम सीड्स इन इट. इफ़ यू डोंट हैव ग्राम सीड्स यू कैन यूज़ ग्रीन ग्राम्स ऑल्सो, और ब्राउन कलर के जो ग्राम आते हैं जिसको मोट कहते हैं या फिर मूंग होते हैं साबुत वाले, उसको भी आप यूज़ कर सकते हो. देन व्हाट यू हैव टू डू, after a few minutes it is seen that some of the seeds start to float on the top and some remain settle on the bottom. Here you can see कुछ जो seeds हैं they start coming up to the top layer of the water and some seeds they start going to the bottom, they settle down to the bottom. तो ऐसा क्यों होता है, why it happens, और हमें कैसे पता चलेगा कि ये वाला सीड हेल्दी है या ए वाला सीड हेल्दी. सी, जो डैमेज और ब्रोकन सीड्स होते हैं ना वो लाइट होते हैं, दे आर लाइट एंड दे कैन फ्लोट ऑन द सर्फेस ऑफ द वाटर. तो ये जो सीड है जो फ्लोट कर रही है वाटर सर्फेस पे, इट इज़ अनहेल्दी, इट इज़ नॉट हेल्दी बिकॉज इट मे बी डैमेज और इट मे बी ब्रोकन और इट मे बी ईटन बाय सम इंसेक्ट. ओके, एंड अपोजिट टू दिस द हेल्दी सीड्स, जो हेल्दी सीड्स होती हैं दे आर हेवियर एंड दैट्स वाई दे सेटल डाउन एट द बॉटम. तो आप इजीली डिफ्रेंशिएट कर सकते हो विच आर द हेल्दी सीड्स एंड विच आर द अनहेल्दी सीड्स. ओके, now what are the methods of sowing seeds? First one is broadcasting, then traditional tools, seed drill and transplantation. These are the 4 methods of sowing seeds. Let's see one by one. Then first one is broadcasting. This is the traditional method where seeds are scattered on the field by hand. Hand से ही, हाथ से उनको ऐसे थ्रो कर दिया जाता है. The disadvantages of this method is that the seeds may not get sown at proper distances. ये जो सीड्स हैं वो प्रॉपर डिस्टेंस पे नहीं जाती है ना, वो इधर उधर स्कैटर हो जाती है और प्रॉपर डेप्थ भी नहीं उनको मिल पाती है क्योंकि वो सॉइल के सरफेस पे ही रहती है. एंड इट रिजल्ट्स इनटू द वेस्टेज ऑफ द सीड्स एंड रिड्यूस्ड क्रॉप यील्ड. और इसकी वजह से क्या होता है कि बहुत सारी सीड्स जो वेस्ट हो जाती है एंड जो क्रॉप का प्रोडक्शन होता है वो कम होता है. सीड्स कैन बी ऑल्सो पिक्ड अप बाय एंड इटन बाय द बर्ड्स. और ऐसी जो सीड्स होती है जो हाथ से फेंके जाते हैं बाय ब्रॉडकास्टिंग, तो वो बहुत सारे बर्ड्स उनको खा लेते हैं. द नेक्स्ट वन इज ट्रेडिशनल टूल. इस तरह का एक टूल होता है ट्रेडिशनल टूल जिसको बोलते हैं. इट कंप्राइजेस अ फनल, दिस इज द फनल एंड इट इज कनेक्टेड टू 2 or 3 ट्यूब्स हियर. ओके, एंड दैट हैव शार्प एंड्स, दे हैव शार्प एंड्स हियर. Seeds are put into the funnel and these seeds travel from these tubes and it penetrate into the soil and place seeds at proper depth. अब ये जो ट्यूब्स होती है वो नीचे शार्प होती है और वो सॉइल के अंदर जो ग्रूव्स बनाती जाती है ऐसे, और इसके अंदर सीड्स जो है वो यहाँ पर ऐसे गिरती जाती है इस तरह से. तो इस तरह से प्रॉपर जो उनको स्पेस मिलना चाहिए और डेप्थ मिलना चाहिए वो मिल जाता है. दिस टूल ऑल्सो इंश्योर्स द सीड्स आर स्पेस करेक्टली. उनको स्पेस जो है वो प्रॉपर मिल जाता है और डेप्थ भी मिल जाती है.
But using this traditional tool may be better than broadcasting, but it requires more time and labor. अब broadcasting अगर हमने अभी देखा तो उसमें तो टाइम कम लगता है क्योंकि सिर्फ ऐसे हाथ से उसको फेंकना होता है, लेकिन इसमें जो है टाइम ज़्यादा लगता है ना। ब्रॉडकास्टिंग में जो है वेस्टेज ऑफ सीड्स होता है, इसमें नहीं होता है वेस्टेज ऑफ सीड्स, और ब्रॉडकास्टिंग में टाइम और लेबर कम लगता है, बल्कि इसमें जो है टाइम और लेबर ज़्यादा लगता है ट्रेडिशनल टूल जब हम यूज़ करते हैं तब। और जो इससे एडवांस जो टेक्निक है दैट इज़ सीड ड्रिल। अब ये सीड ड्रिल है, इट इज़ द मैकेनिज्म एंड इट इन्वॉल्व्स द सेम ट्रेडिशनल टूल जो है उसका ये एडवांस्ड जिसको हम कह सकते हैं फॉर्म है, बट इसकी जो एफिशिएंसी है वो ज़्यादा है, एफिशिएंसी इज़ हायर। ये काम जल्दी करता है, फटाफट करता है, और लेबर और टाइम भी बच जाता है। तो सीड ड्रिल जो है इट इज़ कनेक्टेड टू अ ट्रैक्टर, ये ट्रैक्टर से कनेक्टेड होता है, यू कैन सी इन द पिक्चर, एंड इट हैज़ मेनी ट्यूब्स, इसमें बहुत सारी ट्यूब्स होती हैं यहाँ, और ये जो ट्यूब्स हैं ये प्लो से जुड़ी होती हैं, दे आर कनेक्टेड टू द प्लोज। नाउ जब ये ट्रैक्टर चलता है तो ये प्लो जो है वो ग्रूव्स बनाते जाते हैं, और जो सीड ड्रिल की जो ये कंटेनर्स हैं सीड्स के, यहाँ से जो सीड्स है वो इन ग्रूव्स में गिरती जाती है यहाँ पर इस तरह से, और इस तरह से जो सीड्स है एक साथ बहुत सारी सीड्स को हम सो कर सकते हैं। सो दिस मेथड सेव्स टाइम एंड लेबर एंड इज मोर एफिशिएंट दैन अ ट्रेडिशनल टूल। सो हियर यू कैन सी, ये भी एक सीड ड्रिल है जिसमें नीचे की तरफ ये प्लोज लगे हुए हैं, ये ट्यूब्स आप देख सकते हो, और ये जो है बड़ा सा कंटेनर है जिसमें सीड्स होती हैं बहुत सारी, और ये सीड जो है इस ट्यूब से निकल के नीचे आती है और इस ग्रूव में वो प्रॉपर स्पेस और डेप्थ से सो हो जाती है। देन व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ सीड ड्रिल ओवर ट्रेडिशनल टूल। ट्रेडिशनल टूल अगर हम यूज़ करते हैं तो, और सीड ड्रिल हम यूज़ करते हैं उसकी जगह, तो हमें क्या उसका बेनिफिट होता है। फर्स्ट, प्रॉपर डिस्टेंस एंड डेप्थ जो है वो मिल जाती है सीड्स को, है ना। देन बर्ड्स कैनॉट ईट द सीड्स एज दे आर नॉट एक्सपोज्ड, दे आर नॉट ऑन द सर्फेस ऑफ द सॉइल। देन द सीडलिंग्स डू नॉट कम्पीट फॉर एयर, स्पेस, न्यूट्रिएंट्स एंड लाइट, क्योंकि वो प्रॉपर स्पेस उनको मिल जाता है बीच में, तो ग्रो होने के लिए उनको कम्पीट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एंड लास्ट इज इट सेव्स टाइम एंड लेबर, ये बहुत सारा टाइम और लेबर जो है, मेहनत जो है उसको बचाती है। देन इसमें जो एक लास्ट मेथड है दैट इज ट्रांसप्लांटेशन। ट्रांसप्लांटेशन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग हेल्दी सीडलिंग्स फ्रॉम ए नर्सरी टू द फील्ड। हेल्दी जो सीडलिंग्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं छोटे छोटे बेबी प्लांट्स जिसको हम कहते हैं, वो प्लांट्स नर्सरी में पहले ग्रो किए जाते हैं और फिर फील्ड्स में उसको ट्रांसप्लांट किया जाता है, ट्रांसफ़र किया जाता है। सो इन द सम प्लांट्स लाइक टोमेटो, राइस, चिलीज एक्सेट्रा, दिस सीड्स आर नॉट पुट इन द फील्ड डायरेक्टली बट दे आर सोन इन द सीड बेड्स। इस तरह के सीड बेड्स होते हैं जो कि नर्सरी में बनाए जाते हैं, और ये जो सीड बेड्स होते हैं इनमें छोटे छोटे सैपलिंग जो है वो ग्रो किए जाते हैं। एंड देन दिस सीडलिंग्स आर सिलेक्टेड, और इनमें से जो अच्छे वाले क्रॉप्स होते हैं, अच्छे वाले प्लांट्स होते हैं छोटे छोटे, उनको फिर ट्रांसप्लांट किया जाता है फार्म के अंदर, दे आर ट्रांसफर टू द फील्ड। सो इन दिस वे दिस स्मॉल प्लांट्स कैन बी प्लांटेड इन टू द फार्म। हियर यू कैन सी दिस इज द मेथड ऑफ ट्रांसप्लांटिंग। दीज आर द राइस क्रॉप जिसको हम कहते हैं पैडी फील्ड है ये, तो यहाँ पर राइस का प्लांटिंग हो रहा है, और इस तरह से हम प्लांट्स को नर्सरी में से फार्म में लेकर के ग्रो करते हैं। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ ट्रांसप्लांटेशन। ट्रांसप्लांटेशन का एडवांटेज क्या है? ओनली हेल्दी सीडलिंग्स आर ट्रांसफर्ड थ्रू दिस मेथड। हेल्दी जो सीडलिंग्स है, हेल्दी जो प्लांट्स होते हैं, उनको ही हम यूज़ करते हैं क्रॉप प्रोडक्शन के लिए। जो अनहेल्दी होते हैं हम उनको सिलेक्ट नहीं करते हैं, दे आर नॉट ट्रांसफर्ड। देन इट प्रमोट्स बेटर ग्रोथ ऑफ रूट एंड शूट। जो रूट और शूट्स होते हैं उसका जो डेवलपमेंट होता है वो अच्छा होता है, because these are the healthy plants. Then it allows sowing of the plant plates at proper distance. proper distance पे हम इनको लगा सकते हैं प्लांट्स को, और proper depth पे भी हम इनको सॉइल के अंदर लगा सकते हैं, है ना। तो ऐसे जो प्लांट्स होते हैं जिसको हम प्रॉपर केयर करके या फिर प्लांटेशन के थ्रू, ब्रॉडकास्टिंग के थ्रू, किसी भी वे में हम अगर सीड को सो करते हैं, तो उसके बाद भी बहुत सारी ऐसी स्टेप्स है जो हमें अभी पढ़नी है। तो उसमें इरिगेशन आता है, क्रॉप प्रोटेक्शन आता है, देन पेस्ट कंट्रोल आता है। तो ये सारे जो बचे हुए हमारे स्टेप्स है वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, सो हियर वी विल स्टॉप। इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल फॉर यू, then please like, comment and share it with your friends, and also subscribe my channel. We will again meet in our next video of this same chapter, and that video will be third video. Okay, so you have to watch all the videos if you want to understand the full chapter. Okay, so we will meet again soon with the next video. Till then, take care. Bye bye.